ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेस है कितना हो जाएगा सफिशिएंट है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो पिछले सप्ताह हमने क्या चर्चा किया था आप लोग? शैल वी रिवाइज? तो विल गो इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश दीन उसको उसको दीन नहीं पता। एनीवे, क्या सो व्हाट वी डिस्कस लास्ट वीक? Srimad Bhagavatam is the embodiment of Lord Krishna, and which particular canto is considered to be the lotus face? Okay. Mukharavindam Dasham Pullam. Yes. And what more we discussed? Yeah, so we discussed how Srila Gaur Govinda Maharaj came in touch with ISKCON and Srila Prabhupada, and what was his contribution. So I was just hearing this Vrindavan podcast. It's a very good initiative by uh, Vrindavan podcast. So this is a very uh, it's a very nice initiative by ISKCON Vrindavan, because they are recording the lives and services of many devotees. So I would suggest that it's a nice experience. Devotees should take advantage of like this kind of this kind of podcast they're recording with various senior devotees. I just completed one. Actually, I completed two podcasts today. So what I do is I keep them on 2x mode, and 2 hour podcast I complete in 1 hour or 45 minutes, something like that. So at least we'll get. Yeah, I completed this one just now. Life of Shri Dham Prabhu. He was a Prabhupada disciple. How he came in touch with Srila Prabhupada and how he dedicated his life. Like this, 1 hour 49 minutes, 1 hour 57 minutes podcast. So in 2x mode, we can complete in less than 1 hour. So I also completed this Swarup Damodar Prabhu, it's a famous Kirtaniya, and it's gone. So it's a very nice initiative to hear from various devotees. Other podcasts I also appreciate. Naam Ras podcast. Have you seen Naam Ras podcast? Naam Ras pod. Yeah, they're also bringing very exalted devotees and covering varieties of topics. So it is good to hear from. I loved this one, the unheard story, the story no one heard, serving Srila Prabhupada. So these are two pod means continuation of a single podcast, two in two episodes. Aviram Das was the personal servant to Srila Prabhupada. Very enlivening podcast. So I would suggest that we should all take advantage of. This is also Hari Parshad Prabhu's podcast. Should take advantage of all these podcasts, and we should hear from various devotees so that we'll get to understand Krishna consciousness from various angles. Sometimes it lack in our approach that we hear from selective speakers. That is also good. Few devotees maintain that kind of what we call pattern, that they hear from specific devotees. But then also we should try to hear from various devotees how they came in Krishna consciousness,
what kind of services they performed, what were their challenges. So then we'll get to know Krishna consciousness from various angles. Will not become biased. So it is good if you hear from various devotees and various challenges, various opportunities, various what we call concerns. So we should always have the kind of mindset that to widen our understanding. We should not become like donkeys like this, not to see here, horses, not to see here and not to see here, just here. This is not a very mature approach. We should mature in our Krishna consciousness gradually, and that is only possible if within our society, if we hear from various devotees and learn from their experience. It is very nice. Yeah. So what? Yeah. So we discussed last time how Srila Gaura Govind Maharaj came in Krishna consciousness and what was his contribution. What more we discussed? What is Prayojan Tattva? Goal in Krishna consciousness. Yes. So this is the undergoing seminar. What is the goal? What exactly is the goal of Gaudiya Vaishnava? What is the Gaudiya Vaishnava Siddhanta? Where is it taking us? We are trying to unfold it in different ways. Yes. What more? What is it? What does it mean? Yeah. So certain analogies make things very clear. So two very famous analogies, actually three very famous analogies define Krishna Prema. What are those three famous analogies? Just like businessman is very greedy, Marwadi businessman. Yesterday we were hearing Marwadi jokes by Osho Rajneesh. We were having ice cream and we were hearing Osho. Sorry. So, we were understanding how what how Tarkic, Tarkic logicians, what is their approach. So yesterday we heard two Marwadi jokes. Huh? You would like to hear two Marwadi jokes by Osho Rajneesh? हाँ? तो मैं हिंदी में बताऊंगा. अपनी भाषा में जोक का नहीं तो जोक का जोक बन जाता है. तो एक ओशो रजनीश ने एक जोक बताया. वो बताया कि एक चंदू मारवाड़ी था, है ना. तो वो क्या कहते गया, क्या कहते एक रेस्टोरेंट में, होटल में भोजन करने गया. तो भोजन होने, चंदू मारवाड़ी के साथ उसका दोस्त नंदू मारवाड़ी भी गया था. तो चंदू और नंदू मारवाड़ी भोजन वोजन कर लिए. तो जो नौकर था रामलाल, तो खूटे में टंगी हुई जो कोट है उसने चंदू मारवाड़ी को पहना दिया, बड़े अच्छे से पहनाया. तो चंदू मारवाड़ी बड़ा खुश हो गया. चंदू मारवाड़ी ने 100 रुपए, वो तो अठन्नी अठन्नी का जमाना था, वो जोक में अठन्नी और 10 पैसा था, 100 रुपए रामलाल को पकड़ा दिए. तो नंदू मारवाड़ी नाराज हो गया. बोले मारवाड़ी होकर के तुम ये क्या कर रहे हो, 100 रुपए, अरे 20 रुपए में काम चलता है, 100 रुपए दे दिए. एक तो तुमने मारवाड़ियों की इज्जत खराब करी, है ना. क्यों? मारवाड़ियों के तुम कंजूस नहीं हो, तो 100 रुपए पकड़ा दिए. वो बोले 100 रुपए की जरूरत क्या थी, पर जो काम 20 रुपए से हो जाता है. फिर टिप ही देनी थी ना, तो 20 रुपए से टिप हो जाती है और मुझे अलग जलील होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुमने 100 रुपए दिए, मैं 20 रुपए दूंगा. तो तुमने 100 रुपए दिए, मैं अगर 20 रुपए दूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि नंदू मारवाड़ी भारी कंजूस है. तो तो चंदू मारवाड़ी कहता है कि नंदू मारवाड़ी की बात बताओ, 100 रुपए में क्या एक कोट महंगा है? सौ 100 रुपए में कोट महंगा है और उसपे भी
100 रुपए उसी कोट की जेब में पड़े थे, वो मैंने रामलाल को दे दिए। जोक नहीं समझ आया? समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? नहीं तो अभी देखो ये ओशो से सुनोगे तो आपको अलग हंसी आएगी, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं एब्राइट वर्जन सुना रहा हूँ। समझे जोक? फिर उसने एक और जोक सुनाया, ये आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो चंदू मारवाड़ी गया, चंदू मारवाड़ी गया पैसा कमाने के लिए मुंबई। तो पैसा तो खूब कमा रहा था, लेकिन घर पैसा नहीं भेजता था, मारवाड़ी ठहरा। मारवाड़ी ठहरा तो पैसा घर पे नहीं भेजता था, तो उसकी पत्नी चिट्ठियां लिखती थी कि भाई बच्चों की फीस जमा करनी है, दूध वाले का पैसा लौटा देना है, सब्जी वाले का पैसा देना है। बोले नौकर चला गया, उस है ना, उसको सैलरी नहीं मिली तो नौकर चला गया। तो वो रिटर्न में रिप्लाई लिखता था कि रिटर्न में रिप्लाई करता था कि कितनी पैसों की तंगी चल रही है ना, और कमाना खाना कितना कठिन हो गया है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो फिर वे 1 महीने पे रिप्लाई भेजती थी माँ, उनकी वाइफ, कि क्या कहते, देखिए तो सही, अभी बच्चों की फीस जमा करनी है, ट्यूशन की फीस जमा करनी है, सब्जी का पैसा देना है, और दूध का पैसा देना है, और नौकर का पैसा देना है। इस तरीके से वो लिखती थी। तो चंदू मारवाड़ी फिर रिप्लाई करता था, है ना, कि वो कितना कठिन है पैसा कमाना, और यहाँ पे आजकल कमाई कुछ नहीं है, व्यापार ठप चल रहा है और लोग बेईमान हो गए हैं। लेकिन वो हमेशा ऐसा जरूर लिखता था, है ना, कि पैसा तो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ से 1000 चुम्बन तुम्हारे लिए। ये इमोशनल क्या कहते हैं, जो लिखते हैं ना, लव लैंग्वेज, है ना, पैसा तो नहीं भेज पा रहा हूँ लेकिन 1000 चुम्बन। तो मारवाड़ी की वाइफ भी मारवाड़ी ठहरी। तो उसने आप चिट्ठी भेजी, बोले मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तंगी हो रही होगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ सुलझ गया है। आपने जो 1000 चुम्बन भेजे थे, 20 में मैंने सब्जी वाले को निपटा दिया। तो 30 में ट्यूशन की फीस हो गई, 50 में नौकर भी वापस आ गया। गाड़ी लेके आ रहे, आइसक्रीम खा रहे थे। और आइसक्रीम भी देखो, मतलब चर्चा का विषय कैसे चला, पता नहीं हम कहां से कहां चले जा रहे हैं। लोग हमारी क्लास के इनिशियल सुनेंगे तो बोलेंगे ये प्रयोजन तत्व पर चर्चा हो रही है। ये आइस ब्रेकर है। गाड़ी रुकी आइसक्रीम के लिए, मेरे को लगता है इसको काटना पड़ेगा। गाड़ी रुकी आइसक्रीम के लिए, गर्मी का सीजन है, बच्चों का पेट खराब हो रहा है, भाई आइसक्रीम चाहिए। जैसी गाड़ी रुकी, हमने आइसक्रीम की दुकान के सामने, और हमने गाड़ी का यूट्यूब चलाया तो उसी कंपनी का आइसक्रीम का ऐड आ गया। मैंने कहा आज तक समस्या थी कि गूगल में सर्च करो तो इंस्टाग्राम में ऐड दिखता है तो समझ आता है, ये तो मन में चिंतन हुआ है कि आइसक्रीम की जरूरत है, उतने में तो कंपनी का ऐड आ गया। ये कौन सा एल्गोरिथम है भाई? ओशो से हमने एक और जोक सुनना चाहेंगे? तो ओशो ने बताया उसे, हम सुन रहे थे कि क्या कहते हैं, गांधी जी वाला। ओशो गांधी जी का भारी क्रिटिक है। तो ओशो कहता है कि, है ना, देखो गांधी जी कितने पॉपुलर थे ना, जन सामान्य के बीच में पॉपुलर थे। क्यों पॉपुलर थे? क्योंकि गरीब जनता के प्रतिनिधि थे। तो क्यों गरीब जनता के प्रतिनिधित्व कैसे बने गांधी जी? तो गरीब जनता कौन से क्लास में चलती थी ट्रेन के? तो बोले थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चलती थी। तो बोले गांधी जी भी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ते थे। लेकिन जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में 60 सीट होती है, जिसमें 90 गरीब आदमी घुस सकता है, उसमें गांधी जी अकेले चलते थे। फिर उसके बाद में, है ना, अब गरीब लोग तो गाय का दूध नहीं पी सकते, बकरी का दूध पीते हैं। तो बोले गांधी जी बकरी का दूध पीते थे।
तो ओशो बोला कि देखो मेरा दिमाग कहता है कि मैं गांधी जी में ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ, पर मैं बकरी में ज्यादा कंसर्न है मेरा। बकरी के बारे में मैं गांधी जी की लाइफस्टाइल से उतना इंप्रेस नहीं, पर बकरी की लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहता हूँ। तो पता चला कि बकरी, जो गांधी जी की जो बकरी थी, वो लाइफ बॉय से नहाती थी। और उस समय में बकरी का मेंटेन करने का खर्चा होता था 10 रुपए, जो कि स्कूल टीचर की सैलरी होती थी, जिस बकरी का दूध गांधी जी पीते थे। तो बोले लोग तो समझते गांधी जी महात्मा है और गांधी जी गरीबी में जीते हैं, लेकिन एक बार सरोजिनी नायडू ने कहा कि गांधी जी को गरीब रखने के लिए देश की बहुत संपत्ति खर्च होती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे जो ट्रेडिशनल घर होते हैं ना, जैसे बांस के घर, मिट्टी के घर, है ना, तो वो होते, लगता है कि गरीबों के घर है, लेकिन मिट्टी के घर महंगे पड़ते हैं। मिट्टी की ईंटें महंगी पड़ती है, मिट्टी का जो लेपन पोपन होता है वो ज्यादा महंगा पड़ता है, सीमेंट सस्ता पड़ता है। तो गरीबी, गांधी जी को गरीब रखने में देश के तो इस तरीके से, तो पॉइंट इज, तो चर्चा का विषय निकला था, ये सब बातें इसलिए निकली थी क्योंकि एक क्या बोलते हैं, तार्किक व्यक्ति कैसे होता है, तार्किक, है ना। तो तार्क कहाँ से बात शुरू हुई कि बोले कि ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा कि जगत की सृष्टि किसने करी, तो ओशो ने एक जोक सुनाया। वो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के थे और जैन परिवार में उनका जन्म हुआ था। और तार्किक, तार्किक मतलब, आगे हमारा चर्चा का विषय कहाँ से कहाँ पहुंचा, क्योंकि हम बुद्ध मंदिर का दर्शन करके आए थे, तो हमारा चर्चा यहाँ से शुरू हुआ कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने तार्किकों को हराया, तार्किकों के तर्क को नष्ट किया। तो चर्चा हुई कि आज के जगत में तार्किक कौन है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तार्किक कौन है, ये कौन थे या पिछले रिसेंट इतिहास में। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉजिशियन वाज ओशो, जो तर्क से हर चीज को समझना चाहते थे। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि जगत की सृष्टि कैसे किसने करी। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इस विषय पे क्यों बोल रहा हूँ, ये डिस्कशन क्यों उठ रहा है हमारा, हम ये हमारा ओशो से क्या लेना देना है। चैतन्य चेतावनी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में कितने कितने सिद्धांत अस्तित्व में हैं। ये सब चैतन्य चेतावनी नहीं समझ पाएंगे। मैं ये बताने का कि भाई आंख बंद करके भरोसा करना में हमारी शिक्षा नहीं है, हम उस पथ पे नहीं चल रहे हैं कि आंख बंद करके बस आपको मानना पड़ेगा नहीं तो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे एंगल से कृष्णा कॉन्शियस समझेंगे। मैं उस पर्पट को दिखाऊंगा जो हमने बुद्ध वाला पर्पट पढ़ा, जब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बुद्धिस्ट लोग का उद्धार किया। तात्पर्य में प्रोपा लिखते हैं, तीन जगह पे प्रोपा लिखे हैं, our devotees in Krishna consciousness movement, our devotees in, our preachers of ISKCON must be well versed from all angles of vision, हर तरफ से उनको पता होना चाहिए कि सिद्धांत को कैसे स्थापित करना है। ये वहां पे प्रोपा जी लिख रहे हैं। तो ऑल एंगल ऑफ विजन के लिए तो ऑल एंगल पता होना चाहिए ना। तो किसी ने ओशो से प्रश्न पूछा कि जगत की सृष्टि किसने करी, तो ओशो ने एक स्टोरी सुनाई। तो स्टोरी सुनाई तो एक क्लासरूम में क्लास लगी हुई थी, तो टीचर ने प्रश्न पूछा कि राम जी का शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले मैडम मैंने नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है। ये शरारती लड़का है, ये बेंच तोड़ता है, चेयर तोड़ता है, खिड़कियां तोड़ता है, कांच तोड़ता है। इससे निश्चित है कि इसने तोड़ा होगा, हमने तो नहीं तोड़ा। तो टीचर ने पूछा उससे, भाई टीचर तो क्वेश्चन अलग ही पूछ रही थी कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने थोड़ा और तरीके से बताया कि उस दिन टीचर थी क्लासरूम में, बच्चे थे और एक एजुकेशन विभाग से एक व्यक्ति आया हुआ था ये देखने के लिए कि स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। उस एजुकेशन विभाग के व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बच्चों आप में से कौन बताएगा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। अब मैं तो ओशो की तरह नहीं बता सकता, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा वो है, मतलब मैंने सुना, वैसे मैं बता रहा हूँ। बोले शिव जी का धनुष किसने तोड़ा।
तो बच्चे कहते हैं हमने तो नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। तो अब वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का व्यक्ति वो थोड़ा सा भौचक्का सा रह गया, बोले ये कोई आंसर हुआ? तो इतनी देर में क्या कहते, जो टीचर है क्लास की, है ना, बोलते सर आइए ना अपन प्रिंसिपल ऑफिस में चर्चा बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफिस में गए, तो प्रिंसिपल ऑफिस से बातचीत शुरू हुई कि देखिए ऐसा है, जिसने भी तोड़ा है हम जुड़वा देंगे ना, ऐसा क्या है। इस बात को इतना ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, जिसने भी तोड़ा हम जुड़वा देंगे। तो बात पहुंची एजुकेशन विभाग में, बोले इस मामले को यही रफा दफा कर दो भाई, रफा दफा करने का कितना लोग है ये बताओ, कि शिव जी का धनुष अगर तुड़ भी गया है तो दूसरे धनुष की व्यवस्था करवा देंगे। तो ऐसा करके उन्हें हायर की, मैं आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट जोक, उन्हें इस तरीके से मजाक में करते बोले कि भाई ये मुझसे क्यों प्रश्न पूछते कि सृष्टि किसने करी, मैंने तो नहीं करी, इसमें मेरा हाथ नहीं है। बोले ये इस प्रकार के प्रश्न ऊट पटांग प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, सृष्टि क्यों किसने करी से तुम्हारा क्या लेना देना है। तार्किकों का तर्क है कि जब तुमको आंसर दे उसके तुम्हारा क्या लेना देना है। तो फिर उन्होंने फिर दूसरी स्टोरी सुनाई, बोले लोग इस प्रकार उठपटांग प्रश्न करते थे। बोले मेरे दादाजी ऐसे उठपटांग प्रश्न करते थे। बोले अकल बड़ी है भैंस। तो एक बार मुझसे भी प्रश्न कर बैठे, तो मैंने भी बोल दिया कि भैंस बड़ी। क्यों क्यों? क्योंकि भैंस तो कभी ये प्रश्न नहीं पूछती, भैंस को तो पता ही हम बड़े। ये खुजली तुम्हारी अकल में ही है। तो दादाजी बोलते हैं तुम पागल फालतू बातें करते हो, बेकार की बातें। बोले बेकार की बातें तुम करते हो, तुमने पूछा अकल बड़ी की भैंस, अब मैंने आंसर दे दिया, तो तुमको फिर उसमें मिर्ची लग रही है, तो पूछते क्यों? तो उन ये सब तर्क से, इसको कहते हैं, प्रोपा ने वर्ड यूज किया मेंटल स्पेकुलेटर। इस प्रकार से सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि इन प्रश्नों का कोई आधार नहीं है, यानी तुम कभी भी इस चीज को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि सृष्टि किसने करी। इसको एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, क्यों एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्वेश्चन है। हाँ, क्यों नहीं समझा जा सकता, गुड पॉइंट, तर्क से नहीं समझा जा सकता, क्यों नहीं समझा जा सकता, किस चीज पे? अरे सृष्टि तो किसी ने की ही नहीं ना, इसे तो हम जान ही नहीं सकते। फेथ होना चाहिए किस पे? नहीं नहीं, आस्तिक की डेफिनेशन क्या है? आस्तिक कौन है? आस्तिक मतलब एथीस्ट एंड थीस्ट। हु इज एन एथीस्ट? हु डजंट बिलीव इन, नहीं, जिसको आस्था नहीं, किस पे? आस्तिक वो है, नास्तिक वो है जिसको आस्था ना अस्ति, जिसको नहीं है, जो नहीं है वो मानता है। लेकिन उसको डिफाइन किया गया हमारे आचार्यों ने, कौन नास्तिक कौन आस्तिक है, कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है? जिसको आस्था नहीं है वो नास्तिक है। किस पे आस्था नहीं है? नहीं, जिसको वेद पे आस्था नहीं है। डेफिनेशन ऑफ एथिस्ट इज नॉट दैट हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव टर्म है, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। कोई पॉइंट है हु डज नॉट बिलीव इन वेदास, हु डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इसको कहते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेद को नहीं मानते। ये डेफिनेशन सुनी है आप लोगों ने पहले कभी? कई जगह लिखा गया है, जो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते वो नास्तिक है। तो ये, अब आप जब तक वेद की अथॉरिटी को नहीं मानोगे, आप एस्टेब्लिश कैसे करोगे कोई क्रिएटर है? कैसे एस्टेब्लिश करोगे? तुमने कहा जो फेथ मतलब गुरु पे फेथ, अरे गुरु कहाँ की बात बोलेगा, किस पे फेथ? भगवान पे फेथ तब आएगा ना जब भगवान को एस्टेब्लिश कौन कर रहा है संसार के अंदर, है शास्त्र वेद। इसलिए डीवाइस में क्या बताया गया है कि वेद वेद माँ के समान है, जो पिता से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप वेद की अथॉरिटी को नहीं मानोगे तो पिता के प्रति आप कभी जान ही नहीं पाओगे। तो दुनिया में ऐसे दर्शन होते हैं जो वेद को नहीं मानते, जिसमें से प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं जो वेद को नहीं मानते हैं? चारवाक वेद को नहीं मानते, बौद्ध बुद्ध दर्शन नहीं मानते, जैन दर्शन नहीं मानते, ये सब दर्शन वेद को नहीं मानते। समझ आ रहा है?
हमारा डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ? हम बुद्ध मंदिर से होके आए, तब से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ। वे वेद क्या है, वेद क्यों नहीं मानते, वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वेद की अथॉरिटी को ये लोग? बैड टेस्ट। क्यों नहीं मानते? बैड टेस्ट। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। क्योंकि वेद के नाम पे तथाकथित ब्राह्मणों ने बहुत गंदगी मचाई थी। तब भगवान ने आकर के वेद को निरस्त किया। किस रूप में भगवान आए? बुद्ध के रूप में। ये पूरा ड्रामा लिखा गया है, अभी इस पे ये ड्रामा बनाया जा रहा है वेद की। चलो चर्चा कहीं से कहीं चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। पूरा ड्रामा इसके ऊपर बनाया जा रहा है कि कैसे वेद रीस्टेब्लिश किए, कैसे वेद का खंडन हुआ। क्या हो गया भाई ऐसा? आ गया। पूरा ड्रामा लिखा गया है। ड्रामा है कली के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु तक, कली के आगमन से चैतन्य महाप्रभु तक की क्रोनोलॉजी एक ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट की जाएगी। इसके इसका बैकग्राउंड क्या है कि कैसे कली को स्थान मिला, कैसे मिला? किस राजा ने? महाराज परीक्षित ने। वहां से हमारा ड्रामा शुरू हो रहा है। कैसे महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया, फिर क्यों स्थान दिया? ठीक है, लेकिन क्यों? जानते हैं कि कली बेकार जो है, तो क्यों स्थान दिया? ये ये हो गया गौण कारण। हाँ तो हाँ, ये है मेन रीजन। ये कलयुग की विशेषता ये है कि कलयुग के अंधकार में नाम का प्रकाश तेजी से फैलता है। ये जो आप रीजन बताए हैं कि सरेंडर था कलयुग, ये गौण कारण है। गौण कारण समझते हैं? सेकेंडरी रीजन। सेकेंडरी रीजन मतलब दिस रीजन डज नॉट वैलिडेट द पॉइंट। परीक्षित महाराज को सरेंडर किया इसलिए वो दे दिए, दैट इज दी डिटेल। प्रिंसिपल क्या है, क्यों परीक्षित महाराज, क्या कंसिडरेशन था कि भाई कलयुग के अंदर कुछ गुण है, कलयुग के लोग पूजा करते हैं। कौन सा श्लोक है? कलिम साभा जयंती आर्या गुणज्ञ सारभा। कलिम साभा जयंती आर्या सा भाजयंती। श्लोक कैसे मिलेगा? वेदा बेस। ये श्लोक है। कलिम सा भाजयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनमैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। बोल रहे हैं those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of study। पागल लोग, छोटे मोटे लोग, बुद्धू लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं, है ना, वो कलयुग की साभा जयंती, वो पूजा करते हैं, दे वर्शिप, दे प्रेज। कौन? आर्य सभ्य लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव सोल्स हैं, गुणज्ञ जो कलयुग के गुणों को समझने वाले हैं, और सार भागिना जो सारग्राही हैं। वे लोग क्या करते हैं? कली की पूजा करते हैं, मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं ना। ये सेक्शन है पूरा। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने
कलयुग को स्थान दिया, अलाउ किया, है ना। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया। और कहाँ स्थान दिया? चार पांच जगह पे। 4 प्रिंसिपल्स और एक गोल्ड। तो गोल्ड में स्थान दिया तो कली कहाँ चढ़ गया? ये कहाँ देखा आप लोगों ने? यही इस ड्रामा में बताना है कि मुकुट में नहीं चढ़ा। सीरियल में देखा? आप सीरियल ही नहीं देखा, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन उड़ीसा में भी ये चलता है, हर जगह ऐसे ही बोलते हैं कि कलयुग तो चढ़ गया कहाँ पे? परीक्षित महाराज के मुकुट के ऊपर। वहां से परीक्षित महाराज को डिक्टेट किया, क्या डिक्टेट किया? ब्राह्मण क्षमिक ऋषि गले में श्राप डाल दिया। लेकिन आचार्यों ने ठीक ठीक कमेंट्री करी है कि इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि परीक्षित महाराज के मुकुट पे कली चढ़ गया, परीक्षित के सिर पे कली हावी हो गया। कि परीक्षित के सिर पे कली हावी नहीं हो सकता। क्यों? इज अ प्योर डिवोटी, वो तो भगवान के द्वारा ही रक्षित है। तो फिर कली फिर हावी कहाँ पे हुआ? ब्राह्मण पुत्र के ऊपर, श्रृंगी ऋषि के ऊपर हावी हुआ। तो यहाँ ये एपिसोड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैं? ये है इधर पे ड्रामा में। ब्राह्मण, हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। ये होता है क्वेश्चन, ये भी इस ड्रामा का एसेंस है। और ये ड्रामा आप ही लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग क्या क्या बनेंगे देख लेना। तुम बनना श्रृंगी ऋषि, नहीं श्रृंगी ऋषि इसको बनाना, हाँ यंग ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, ठीक है ना। जो गाड़ी उड़ा देता है अपने श्राप, अपनी कोप शक्ति से जो गाड़ी उड़ा सकता है। राजा परीक्षित किस खेत की भूली है जो महिंद्रा एक्सयूवी को उड़ा सकता है। क्वेश्चन इनका है, चलो प्रयोजन तत्व चर्चा चल रही है, लेकिन चलो अल्टीमेटली हम प्रयोजन तत्व तक ही पहुंचेंगे। बताइए। अगर महाराज के सिर में कली नहीं चढ़ा था तो महाराज जी ने सबको डाला ही। बताइए, कोई आंसर दीजिए। तुम आंसर याद करके आए हो, बोलो। नहीं, दूसरों को चांस दो, तुम प्रीवियस क्लास में थे। बोलो, आप लोग बोलो। राजा को लग रहा था ढोंग कर रहे तो ठीक है, ढोंग भी कर रहे थे। तो क्या ऐसे कोई ढोंग कर रहा है तो उसके गले मरे हुए सांप डाल दोगे? हु? हाँ, तो परीक्षा में इतने महान वैष्णव के सांप डाल देंगे। हाँ, यस। बोलो बोलो, तेज बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। भगवान की दो शक्ति होती है, एक महामाया, एक योग माया। भगवान की दो शक्तियां हैं। महामाया शक्ति मतलब जो मेटेरियल एनर्जी जो सामान्यतः जीवों को मोहित करती है, और योग माया शक्ति महान भक्तों को भी मोहित करती है। समझ रहे हैं? जैसे योग माया का कोई उदाहरण दिएगा? हाँ, योग माया भगवान के भक्तों को विमोहित करती है, कोई उदाहरण? यशोदा मैया भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाती है, किसके द्वारा मोहित है? माया मतलब जो भुला देती है, तो महामाया भी भुला देती है, योग माया भी भुला देती है। तो योग माया और महामाया में क्या अंतर है? योग माया भी भुलाती है, महामाया भी भुलाती है, तो दोनों भुलक्कड़पन में क्या अंतर है? योग माया के द्वारा प्रभावित व्यक्ति भी भगवान को भूलता है, और महामाया के द्वारा प्रभावित व्यक्ति भी भगवान को भूलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, एक प्रेमवश भूलता है और एक ईर्ष्यावश, द्वेषवश भूलता है। हिंदी कठिन हो रही है, समझ आ रहा है? तो योग माया में भी भगवान को भूला जाता है। उदाहरण, भगवान कृष्ण के फ्रेंड्स भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते, भगवान कृष्ण के पेरेंट्स भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते। इसका मतलब है कि वो लोग भगवान को भूले हुए हैं, पर किसके द्वारा भूले हुए हैं? योग माया के द्वारा भूले हुए हैं। और कौन, या और
भगवान कृष्ण के से जो द्वेष रखते हैं, जैसे शिशुपाल, वो भी तो भूला हुआ कि ये भगवान है, वो भी तो भगवान नहीं मानता, तो काय का भगवान, ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, तो चोर है, ये तो ग्वाला, अरे इसकी तो जाति भी क्लियर नहीं है। एक होमवर्क है, मतलब अभी नहीं कर पाएंगे आप लोग, इसके लिए मतलब एक असाइनमेंट है हम लोग का, कि शास्त्रों में ऐसे कई कई जगह हैं जहां पे भगवान को गाली दी गई है, लेकिन हर गाली का अर्थ गुणगान है। समझ रहे हैं? तो क्या गाली का क्या गुणगान? तो क्या गाली दी है, उस शब्द का क्या डबल मीनिंग, अर्थ क्या है। जैसे डबल मीनिंग जोक्स होते हैं ना, डबल मीनिंग जोक्स, इसके डबल मीनिंग होते हैं, तो वैसे जो कृष्ण को गाली दी जा रही है उसका डबल मीनिंग, तो ये एक थीसिस निकालना चाहिए, डबल मीनिंग, शास्त्रों के डबल मीनिंग, जहां कृष्ण को गाली दी जा रही है जिसका डायरेक्ट मीनिंग तो ये है, लेकिन उसका सरस्वती जी उस असुर के माध्यम से, जैसे शिशु, ये पूरा महाभारत में एक सेक्शन है, एक डिवोटी क्लास दे रहे थे, महाभारत में पूरा सेक्शन है जहां पे शिशुपाल ने 100 गाली दी, और 100 गाली मतलब एक एक गाली नहीं दी, 100 मतलब 100 श्लोकों में गाली दी है। मतलब जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु गुणगान में 100 श्लोक लिख दिए, जैसे केशव काश्मीरी ने गंगा नदी के गुणगान में 100 श्लोक लिख दिए, वैसे शिशुपाल ने 100 श्लोकों में कृष्ण गाली दी है। लेकिन हर श्लोक की व्याख्या एक तरह से गाली की तरह व्याख्या हो सकती है और एक तरह से गुणगान की तरह व्याख्या हो सकती है, सेम शब्दों से। तो ये हमारा थीसिस होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग होमवर्क करना चाहिए, ये समर वेकेशन में ये काम करेंगे, इस 100 गालियों को हम खोज करके 100 गुणगान क्या है वो निकालेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा ना, तो इसकी व्याख्या कैसे कितनी इंटरेस्टिंग होगी कि एक तरफ श्लोक बोलेंगे तो लगे अरे तो गाली दे रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द को घुमा के बोलेंगे अरे ये तो गुणगान है भगवान का। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, उत्तम श्लोक, कि जिनसे संबंधित सभी चीजें उत्तम हो जाती है। अब गाली भी दोगे तो वो गुणगान बन जाएगा। तो कहां से, इस पॉइंट पे गाली पे कहां से आए हम लोग, योग माया चर्चा चल रही थी, कि योग माया और महामाया क्या अंतर है। एक व्यक्ति द्वेष के कारण भगवान को भूला हुआ है जैसे शिशुपाल, और एक व्यक्ति प्रेम के कारण भगवान को भूला हुआ है जैसे भगवान के फ्रेंड्स, लेकिन दोनों का भुलक्कड़पन अलग अलग लेवल का है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे प्राइम मिनिस्टर, कोई कोई टेररिस्ट है या कोई क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति, मतलब मैं नहीं मानता प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेगा वो, इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भूला हुआ है, he doesn't know, he doesn't accept the authority of prime minister, he doesn't accept the prowess of prime minister। और प्राइम मिनिस्टर की मदर है, वो भी बोलती है अरे तुम हो गए प्राइम मिनिस्टर, भोजन कर, तुम खाना खाओ, तुम टाइम पे खाना नहीं खाते। तो शी हैज फॉरगेटन दैट ही इज प्राइम मिनिस्टर, and this criminal mindset, this person has also forgotten that he is prime minister, but दो, ये दोनों forgetfulness अलग अलग है। ये समझ आ रहा है, इज इट बिकमिंग क्लियर। तो योग माया के द्वारा भगवान के भक्त मोहित होते हैं, और महामाया के द्वारा जो भक्त नहीं है, जो द्वेषी हैं, वो मोहित होते हैं। तो परीक्षित महाराज का जो मोहित अवस्था हुई है कि उनके दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया और उन्होंने उठा करके मरा हुआ सांप डाल दिया, ये किसके कारण है, योग माया के कारण। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि भाई इससे क्या फायदा होगा, योग माया के द्वारा प्रभावित होने से क्या फायदा हुआ, भागवतम का आविर्भाव हुआ। क्या शास्त्र में ऐसा कोई और उदाहरण भी है जहां पे कोई भक्त योग माया के द्वारा, आप नहीं बोलोगे, क्या शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण भी है कि भक्त योग माया के द्वारा प्रभावित होकर कोई गड़बड़ किया हो और इन रिटर्न कुछ बहुत बड़ी चीज मानव सभ्यता को हाथ लगी हो। भगवत गीता में अर्जुन भगवान की योग माया शक्ति से विमोहित हुए, कहा, कौन से श्लोक में,
देख लो अर्जुन, और भगवान जब अर्जुन ने कहा कि मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रख दीजिए, तो भगवान कृष्ण को क्या करना चाहिए था आइडियली? दुर्योधन के सामने रखना चाहिए था, लेकिन कहां जाके रखे? भीष्म और द्रोण के सामने जाके रखे। क्यों वहां जाके रखे? और जाके उंगली दिखा रहे, देख लो देख लो देख लो देख लो। तो अर्जुन क्या हुआ? इमीडिएटली भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा विमोहित हो गए। उससे क्या हुआ? और कोई विमोहित हुआ हो और कोई महान ग्रंथ का उदय हुआ हो गया ना? भागवतम तुम तो अंदर इधर पे हो गया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देना है, तीसरा एग्जाम्पल दो। ये तीन ही तो महान ग्रंथ है। रामायण कैसे? वाल्मीकि जी थे। किसको? शिकारी को। वाल्मीकि जी श्राप दी शिकारी को। वाल्मीकि जी बाद में विचार किया कि मेरा क्या लेना देना था उस शिकारी से? वो शिकारी अपना कर्म कर रहा था, वो द्रोण पक्षी को अपना कर्म फल मिल रहा था, वो उनका बीच का मैटर, मैं बीच में क्यों फंसा? ये जो अचानक से उनको ये जो विमोहन हुआ, ये क्यों हुआ? और उन्होंने श्राप भी जो दिए वो भारी भारी पोएटिक स्टाइल से दिए। जिस जो संस्कृत की ज्ञाता है वही लोग बता सकते हैं कि भारी पोएटिक स्टाइल से दिए, और कंफ्यूज थे क्यों मेरे से क्या हो गया। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जरा मेडिटेट करिए आपके मुंह से क्या श्राप निकला है। तो ये एक प्रकार की काव्य शैली है। इस काव्य शैली में आप भगवान राम का गुणगान कंपाइल करिए। तो भगवान के भक्त कभी कभी अपेरेंटली भगवान के द्वारा विमोहित किए जाते हैं कुछ महान कार्य के लिए, है ना? तो इसलिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि हम लोग मोहित हों और हम बोले इट वाज व्हाई द यू नो योग माया पोटेंसी, दैट शुड नॉट बी द केस एनीवे। हाँ, अब आप ही बताओगे इसको। हाँ, मतलब यही तो सेक्शन है कि ब्राह्मण के ऊपर कली ने वार क्यों किया। ड्रामा तो इसी का है, ड्रामा का पर्पस ही है। ये पहले जो चैट जीपीटी है वो भागवतम का उदय करके ड्रामा का थीम रखा था। मैंने कहा नहीं नहीं, थीम चेंज कर। वो हमारा वो नहीं है। हमारा थीम भागवतम का ग्लोरिफिकेशन और है, पर दैट इज नॉट द थीम ऑफ द ड्रामा। ड्रामा का थीम कुछ और है। ड्रामा का थीम है भगवान बुद्ध का आविर्भाव, शंकराचार्य का आविर्भाव, ये रहा इस ड्रामा का थीम है। क्वेश्चन ये है कि क्यों ब्राह्मण को कली ने अटैक किया। हाँ, अगर सोसाइटी को करप्ट करना है तो ब्राह्मण को करप्ट करना पड़ेगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, पे विचार किया जाएगा। इस पे विचार किया जाएगा। क्वेश्चन पूछें जरा, क्या क्वेश्चन है? जरा गूगल गुरु से पूछें। whom, पहले तो देखें, whom did कली अटैक्ड। अरे तुम लोग स्कॉलर बोर्ड वाले हो ना, ये सब तुमको स्कॉलर बोर्ड में क्वेश्चन लगाना चाहिए। स्कॉलर बोर्ड वालों को ऐसे रिसर्च भी करके देना चाहिए। परीक्षित और श्रृंगी। देखो 99 जगह परसेंट ये लिखा है। हाँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस्कॉन वाले अलग तरह से कमेंट्री कर रहे हैं। नहीं, ये दिस इज द, मतलब ये बहुत हॉट टॉपिक है कि भाई कली उस पर अटैक कैसे कर सकता है। नेटवर्क क्यों इतना स्लो है? द रीजन वाई श्रृंगी कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कली इज, हरि बोल, how let us see. But says the personality of Kali got the opportunity to regain through
this son of Brahmana Shringi. same question. How did Kali from Brahman? Kali was permitted to देखो how See, लोग अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Was it because Brahman Shringi somehow connected to 5 places where Kali this ढंग से पढ़ो ना, इसको लेके माइक्रो में पढ़ दो ना तरीके से. फर्स्टली क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो. Question: How Kali influenced that Brahman, as Kali was only permitted to reside in 5 places? Was it because Brahman Shringi somehow connected to the 5 places where Kali was permitted to reside? Firstly, answer. Firstly, we have to understand that these 5 places are not just physical buildings or physical spaces. In addition to being physical places, they are much more. There are 4 dharmic religious principles, namely Satya, Saucha, Daya, and Tapasya, truthfulness, cleanliness, mercy, and austerity, respectively. The 4 principles which are completely against the above 4 are cheating, uncleanliness, indiscriminate killing, unrestricted illusory sense enjoyment, respectively. There are 4 activities that are epitome of these adharmic principles: gambling, illicit sex, meat eating, intoxication. Any inclination within a person that goes against the dharmic principles becomes the ground for Kali to influence. The inclinations of a person are present in the mind. Thus, Kali is present in such a person's mind and can influence the person to perform such adharmic actions. अभी परीक्षित माइंड में क्यों नहीं था? क्योंकि उनमें ये सब नहीं था. उनमें 4 चीजें नहीं थी. ठीक है. Once a person performs such adharmic activity, then Kali takes more control of that person. So, place does not refer to physical space but also subtle space. Like the old saying goes, empty mind is devil's workshop. There are many other activities that are not epitome of adharmic activities but are very, very sinful. Example: abortion is directly against mercy. Giving false witness in court is against truthfulness. There should be no doubt that Kali has serious influence on these activities and persons involved are seriously under the grip of Kali. It is not that Shringi had performed any activity that was sinful. Srila Prabhupada mentions that the following in the same purport to Srimad Bhagavatam 1st Canto 18th chapter 25th verse. The personality of quote the personality of Kali Yuga therefore was seeking the opportunity to establish authority, and by the grace of the Lord he found a hole in the puffed up, inexperienced son of a Brahman. The little Brahman wanted to show his prowess in destruction, and he had the audacity to punish such a great king as Maharaj Parikshit. He wanted to take the place of Lord Krishna after his departure. Unquote. The reason why Shringi could be influenced by Kali was because the Brahman boy had a little inclination to take place of Krishna, and he was ready to use his Brahmanical power against devotee of Krishna. This is the same inclination that Kali has to become God or harm devotees. Kali was doing this by decorating himself like an ugly king and hurting mother cow and dharma bull. The most important thing to remember is wherever the 9 processes of bhakti, a devotional service, takes place, Kali's influence cannot be there, especially in place where and when chanting and hearing of glories of the Supreme Personality of Godhead and of Absolute Truth Krishna is there. Yeah, one more thing I would like to add. One more thing I would like to add is Brahman birth. Though Ravan was a Brahmin, he was also well versed in all Shastras and was a great devotee of Lord Shiva. But then he started to feel pride that no one can defeat him, not even gods. Then it was time for his end in the hands of Lord. Even Hiranyakashyap was evil, and he also felt pride that no one is as great as him. Do you think in those days Kali was acting on their heads? Demons were given a chance to become Brahmins so that they can utilize this birth to gain good merits and go back to Godhead. But if they are still puffed up, then it's time for Kali to act through them. Srimad Bhagavatam 1.18.47 purport. The typical example is the son of Shamik
Shamik Rishi, and all the foolish sons of Brahmanas are warned hereby not to become as foolish as Shringi and to be always on guard against the demoniac qualities which they had in their previous births. The foolish boy was, of course, excused by the Lord, but others, who may not have a father like Rishi, will be put into great difficulty if they misuse the advantages obtained by birth in a Brahman family. Previous birth traits carried caused this Shringi Rishi to behave like that. See if I am Shudra in last birth and did some little good karma to get a Brahmin life this birth. God gave me chance to improve my condition and uplift myself. But if still I cannot overcome the past birth's vasanas, then I am sure to fall down again. Hare Krishna. Padu? Yes, none of the Srila Prabhupada purports mentions about the crown worn by King Parikshit, owned by the defeated King Jarasandh that day. I regret, but this part is mentioned elsewhere. Maybe the kid Brahman is immature enough to control anger, and maybe it's all Lord's plan to make King Parikshit Maharaj to commit a sin and then get a curse, and Rishi Shringi was just playing his role there, as per the plan. Kali acts through the boy. Brahmin boy was young, uncontrolled, with high power in hand. He can curse. The Brahmin's curse or boon never goes futile. Kali wanted to show his influence on the king who was wearing the gold crown as he sat on the head of King Parikshit. रूपा जी ने इसको पर्टिकुलरली डिनाई किया है, रूपा जी ने इस पॉइंट को पर्टिकुलरली डिनाई किया है ये कह करके कि परीक्षित महाराज के ऊपर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि परीक्षित was not cursed, or what क्या बोलते हैं, परीक्षित was not influenced by Kali, it was श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी, अच्छा श्रृंगी ऋषि को भी आप ऐसा मत समझिए कि is one person है श्रृंगी ऋषि, है ना। it was the plan of Kali कि to ताकि कलयुग में डीमंस ब्राह्मण परिवार में जन्म लें। इसका एक श्लोक भी है, मुझे एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं है ना। और क्या कहते, तो श्रृंगी ऋषि इज एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, is the personification of the entire Brahmin community. So Brahmin communities are influenced, Brahmin community got influenced by Kali. अच्छा ये आज हम नहीं देखते, क्या ये जो चीज हम देख रहे हैं शास्त्रों के अंदर, ये आज दिखती कि नहीं दिखती है? हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण्स दे आर वेरी पफ्ड अप एंड दे फॉलो मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग करते हैं, बहुत लोग भी करते हैं, लेकिन बहुत लोगों से भाई लोअर कास्ट के व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है कि वो ये करेगा, लेकिन ब्राह्मण से मोहपात्र लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो लोग, है ना, कि वो लोग महापात्र हैं, वो भवानी कृपा के महापात्र हैं, वो लोग ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जो भागवतम के सीन में हो रहा है वो एक व्यक्ति विशेष की घटना नहीं है। ये बात को और समझिए, भागवतम के एपिसोड कैसे लेना है कि ये एक पूरा श्रृंगी ऋषि इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एंटायर ब्राह्मण कम्युनिटी इन कलयुग, नॉट वन पर्सन श्रृंगी कि जिसके ऊपर हम ये आर्गुमेंट कर सके वो छोटा था इसलिए बेचारा इमेच्योर था इसलिए उससे गलती हो गई बेचारे से, उसकी बेचारे गलती क्या पूरा ब्राह्मण समाज भुगतेगा? नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कलयुग का ये प्लान है कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, वो लोग मतलब दे आर पफ्ड अप बिकॉज ऑफ देयर being born in a Brahmin family, and because of becoming puffed up they disregard the actual regulatory principles। ये होता है, ये हो रहा है, समझ रहे हैं? कोई भी एक लीला को समझाने के लिए कई एपिसोड है। जैसे ब्राह्मण्स को कर्स मिला था किसके द्वारा? किसके द्वारा कर्स मिला? नंदी के द्वारा।
क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या किए थे, शिव जी को जब ये सब घटना चली थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जब सती हो गई थी, तो वो लोग दांत दिखा दिखा के हंसे थे, तो शिव जी के गणों ने सबके दांत तोड़े थे। ये सब फोर्थ कैंटो में आता है। ये भी एक लीला है, इसका भी ड्रामा होना चाहिए। एक नंदी बनेगा, एक भृंगी बनेगा, और नंदी भृंगी मिल करके ब्राह्मणों के दांत तोड़ेंगे और दक्ष का गला काट दिया जाएगा। तो ये सब ड्रामा करना चाहिए। नहीं, कितना अच्छा ना ये सब। सैल्यूट हो रहा है? बकरी का सिर लगाया जाएगा है। ओ देखो देखो, मैं नहीं बोल रहा कि ये लोग कैसे कैसे कह रहे हैं। वेरी गुड। तो पॉइंट इज, भागवतम के एपिसोड इज नॉट व्यक्ति विशेष। जैसे भृगु मुनि ने भगवान की छाती पे लात मारी, भगवान की छाती पे कौन रहते हैं? लक्ष्मी देवी। तो तब से उन्होंने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ये गरीब ही रहेंगे, उनके पैसा आ भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। सही है ना? तो लेकिन ये कहां से ये, तो इस अभी कोई बोले अरे एक ब्राह्मण की गलती सबको क्यों भुगतनी पड़ रही है? पॉइंट समझिए। पॉइंट इज अवर ये इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सोनिफाइड अंडरस्टैंडिंग शास्त्र में दी गई है, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को हमको समझना सीखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कल्चर की एक विशेषता है कि हम किसी के भी क्या बोलते गुण और क्वालिटीज को हम उसके प्रीवियस लिनेज से मैच कर पाते हैं। कोई कोई ब्राह्मण लोभी है, तो ब्राह्मण लोभी है तो उसके प्रीवियस ट्रेड्स पे भाई कौन कौन ब्राह्मण लोभी थे, है ना, क्रोधी थे, वो रिलेट कर पाते हैं। केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सबके लिए, है ना। तो ये जो लीनेज है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको आज के सरल शब्दों में डीएनए बोलते हैं, लेकिन वो डीएनए से कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये एक व्यक्ति, एक पर्सोनिफिकेशन, एक व्यक्ति नहीं है। Shringi Rishi is not just one person who is actually influenced by Kali and because of everybody suffering. It's not like that. Shringi Rishi should be considered to be the personification of the entire Brahmanism in Kali Yuga. अच्छा, ये क्या किसी को डिसरिगार्ड करने के लिए ये सब एग्जांपल दिए गए हैं? प्रोपा यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई प्रोपा जी यहाँ लिखा है ना, so if I am a Shudra in last birth but did some good karma to get Brahmin life in this world, God gave me chance to improve the condition and uplift myself. But if still I cannot, so Krishna is giving us chance. Giving birth in a Brahmin family, there is chance for someone to, कम से कम इट इज एक्सपेक्ट, अगर कोई व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया है, इसका फलस्वरूप उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया, तो ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्टेड होता है? चलो उल्टा क्वेश्चन को इस तरह उल्टा घुमाते हैं। कोई व्यक्ति के पाप कर्मानुसार उसको सपोज करो नॉर्थ ईस्ट में जन्म मिला, चंडाल परिवार में, वो तो कुत्ता खाएगा बचपन से, खाएगा कि नहीं खाएगा? या उसको चाइना में जन्म मिला तो सब कुछ खा जाएगा वो। तो कोई व्यक्ति को कहाँ जन्म मिल रहा है, उसे प्रीवियस कुछ कर्म है अच्छे, तब तो जाकर उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म का अर्थ क्या होता है? कि उसको ही इज गेटिंग सर्टेन अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू व्हाट वी कॉल, क्या कहते हैं, नॉन सिंफुल लाइफ, पायस लाइफ। फिर भी अगर उसको यूज नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे आप? तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। समझिए, एक और चीज है, ये क्वेश्चन उठेगा, पता नहीं, मैं इंग्लिश में बोलना चर्चा करने का पूरा हमारा हिंदी हो गया, जो ट्रांसक्राइब करने में हरे कृष्णा होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम केवल डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, तो आज का टॉपिक शुरू नहीं हुआ। भागवतम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे शास्त्र में कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो इंटरवोवन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंटरवोवन समझते हैं ना? जैसे ये इंटरवोवन है, कौन सा धागा कहाँ से जा रहा है, कौन सा धागा कहाँ पहुंच रहा है ना, वो चीज को रिलेट करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इट्स इंटरवोवन। लेकिन ये कोई क्या बोलते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, और एक होती है लीनियर इक्वेशंस।
लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है? कोई एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन? x plus y is equal to z. ये it's a linear equation. You put x, you put y, you will get z. It's linear equation. तो बाकी धर्मों में क्या होता है, ये बाकी स्क्रिप्चर्स में क्या होता है, दूसरे धर्मों में बड़ी लीनियर इक्वेशंस दी गई है। लीनियर इक्वेशन किसको पढ़ाते हैं? चौथी क्लास के बच्चे को। और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस किसको पढ़ाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलस भी जुड़ जाता है, और वेक्टर्स भी जुड़ जाते हैं, और टेंसर्स भी जुड़ जाते हैं। सोचिए जरा, मतलब, और उसमें भी कभी कभी वही साइंस, वही फिर अभी इलेक्ट्रिकल साइंस में जुड़ जाए तो उसमें वो कुछ अलग जुड़ जाता है, आप कंप्यूटर साइंस जुड़े तो कुछ अलग जुड़ जाता है। कितने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। क्वांटम फिजिक्स जुड़ जाता है, तो कितने अजीब गरीब श्रोडिंगर इक्वेशन, ये फलाना प्रूव करो। क्वेश्चन क्या है, प्रूव क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। एक प्रोफेसर बोल रहे थे क्वांटम फिजिक्स के कि क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर बोल रहे थे, आईआईटी के प्रोफेसर, शायद आप लोगों ने बहुत वायरल रील देखी होगी, बोले कि क्वांटम फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, तो बोले फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? बोले पढ़ा इसलिए रहे हैं कि पहले केवल मुझे समझ नहीं आता था, अब मेरे साथ 100 आप लोग भी है। समझे आप पॉइंट? समझे? सो द पॉइंट इज, हम इससे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से तात्पर्य समझिए कि सोल की इटर्नल जर्नी है, अनंत ब्रह्मांडों से, अनंत काल से, अनंत शरीरों में ट्रेवल करके वासनाएं लेकर के आ रही है। आप कौन सा लीनेज कहाँ जोड़ोगे, और कौन सी वासना कहाँ जोड़ोगे, और कौन सा इंप्रेशन कहाँ जोड़ोगे? तो इससे भी प्रूव होता है कि सोल की जर्नी इटर्नल है। किससे प्रूव होता है? कि आवर इंप्रेशंस आर नॉट इन लीनियर, दे आर नॉन लीनियर, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि अगर लीनियर होते तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए था लाइफ में, तो लीनियर होता था, लेकिन ये लीनियर नहीं, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हैं? तो कभी अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगे तो क्या समझना चाहिए? इज इट अ ब्लेसिंग, इज इट अ कर्स? इट्स ब्लेसिंग। कम से कम ये ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे नहीं है जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम बड़ी क्लास में, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और जब समझ नहीं आए तो क्या आंसर है? कि पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब 100 और लोग को समझ नहीं आ रहा है। ये बात गीता में भगवान ने बोल रही है, कर्मणों गहना गति। भाई समझ से परे कुछ कुछ चीजें। एक सोल की जर्नी इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इट्स कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। so we cannot just define it with linear equations, जैसा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आती है तो लोग सोचते हैं ये तो बिल्कुल माइथोलॉजी, तो होता ही नहीं कुछ। भाई ऐसा है नहीं, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट रिक्वायर्स क्वांटम फिजिक्स कोई समझ नहीं सकता, श्रोडिंगर की इक्वेशन कोई समझता नहीं है। कोई समझता है? कुछ समझ नहीं आती है ना। लेकिन उसमें कौन लोग रमन करते हैं? उस स्तर के लोग रमन करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। छोटा मोटा आदमी क्योंकि बोर हो जाएगा उस क्लास में, लेकिन जो जानकार लोग होते हैं वो उसी में रमन करते हैं। तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म के विशेष रूप से वैदिक शास्त्रों में देयर थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। हमारे आचार्य एज फार एज पॉसिबल उसको सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बट कि लेकिन जब कि कोई चैलेंज करे विशेष रूप से भी ऐसा होता है कि ऐसा होता है, तो उसको बोलना भाई देख, 6ठी क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा क्वांटम फिजिक्स क्लास में कुछ नहीं समझेगा, तो तुझसे ना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियसनेस का बिल्डअप चाहिए। ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई हमारी? योग माया पोटेंसी ने परीक्षित महाराज को योग माया के द्वारा बाधित किया, और महामाया शक्ति ने श्रृंगी ऋषि को बाधित किया, और भागवतम का उदय हुआ। दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर। ये हम कहाँ से पहुंचे यहाँ पे? ब्राह्मण पर्सनिफाइड है और उसका lineage। नहीं, ये यहाँ भी कहाँ से पहुंचे? हाँ वही है, तो ब्राह्मण जो है वो पर्सनिफाइड है, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ठीक है, ब्राह्मण में क्यों आए हम लोग?
ब्राह्मण के पास क्यों आए? कलयुग में क्यों influence तो किया? कल वो चर्चा में क्यों आए कलयुग के इन्फ्लुएंस पे? कलयुग में परीक्षित महाराज को influence किया कि ब्राह्मण को influence किया? ये क्वेश्चन क्यों उठा? उससे पहले क्या चर्चा चल रही थी? मिसकंसेप्शन की परीक्षित पे influence किया, लेकिन ये क्वेश्चन शुरू हुआ? कलयुग की स्पेशलिटी क्या है? नाम जब से तो कलयुग की स्पेशलिटी में क्यों आए थे? कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया ही क्यों? तो परीक्षित महाराज की चर्चा शुरू क्यों हुई हमारी? ड्रामा के लिए। तो ड्रामा पे क्यों मैं आ गया अचानक से? हम आए चर्चा शुरू किए थे बुद्ध से, तार्किक से, और हमारा टॉपिक था कि है ना, कली के आगमन से लेकर चैतन्य महाप्रभु था। तो कली का आगमन पे ही सारी चर्चा चल रही थी। कली का आगमन क्यों अलाउ किया, चैतन्य क्यों अलाउ किया गया, ताकि परीक्षित महाराज ने क्यों अलाउ किया, क्योंकि वहां पे नाम का महत्व है। ये तो कली का आगमन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर भगवान बुद्ध के रूप में क्यों आए? क्योंकि जिन वेदों ब्राह्मणों ने वेदों को क्यों डिस्टॉर्ट किया? कली के प्रभाव से, और कली के प्रभाव से ब्राह्मण कुलों में असुरों को जन्म मिला, ये भी एक कारण है। उन लोगों ने पूरे पूरे वेद की व्याख्याओं को बदल के रख दिया। जो वेद से भगवान को स्थापित करना था, अब वही वेद समाज में कुरीतियां स्थापित कर रहे थे। ये लोग वेद से तो बोलते हैं, अरे तुम्हारे वेद में तो लिखा है मांसाहार अलाउड है, तुम्हारे वेद में तो लिखा है कि शराब अलाउड है, तुम्हारे वेद में तो लिखा है कि पति मरता है तो स्त्री को सती होना चाहिए। सब वेद के, तुम्हारे वेद में तो शूद्र को है, हाँ ध्रुव राठी बोलते, कोई भी बोलता हो, तो वेद से ही तो बोलते ना। तो इसलिए फिर भगवान को क्या करना पड़ा, बोले जिस वेद के नाम पे तुम इतना घपला कर रहे हो, जाओ मैं वेद को ही रिजेक्ट करता हूं। अच्छा, वेद को तो अगर रिजेक्ट ही करना था भगवान आपको, तो फिर वेद को स्थापित क्यों किया? भाई वेद आए, भगवान बुद्ध के रूप में आए, भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में आके वेद को रिजेक्ट किए। क्वेश्चन क्यों रिजेक्ट किए, आंसर समझिए क्यों रिजेक्ट किए। ये समझना कठिन है, ये सब ड्रामा में आप लोग करना है कि भगवान बुद्ध के रूप में आए, उन्होंने वेद को रिजेक्ट किया। यही समझ लीजिए, भगवान आए बुद्ध के रूप में, उन्होंने वेद को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया समझ गए, क्योंकि वेद के नाम पे गड़बड़ कौन लोग कर रहे थे? ब्राह्मण लोग कर रहे। ये ब्राह्मण कौन थे? ये असुर लोग थे, डीमंस थे। इनको जन्म दिया क्यों गया था? आइदर अपलिफ्ट करने के लिए, या तो समाज को पूरा पैरालाइज करने के लिए, क्योंकि कली को तो अपना प्रभाव जमाना ही था। अब कली को प्रभाव जमाना अलाउ क्यों किया गया? क्योंकि संकीर्तन आंदोलन, क्योंकि कली युग में ही संकीर्तन का महत्व, और संकीर्तन से क्या मिलने वाला है? प्रयोजन तत्व, तब से नहीं मिलने वाला है। ऐसे हम लोग कुछ ऐसे हम लोग किए, समझे? आप समझिए, संकीर्तन इज टेकिंग अस टू प्रयोजना। दैट प्रयोजना जो संकीर्तन हमको लेके जा रहा है, ये बाकी युगों में संभव नहीं है, बाकी मेथड से भी संभव नहीं है। समझ रहे हैं? ये प्रयोजन तत्व को स्थापित होने के लिए ये सब घटना हुई है, समझ लीजिए एक तरह से। अगर कोई देखा जाए कि एंटायर पूरा जो थीसिस कहां से जा रहा है, हमारा थीसिस कहां पे जा रहा है, कि जस्ट टू एस्टेब्लिश द प्रयोजन तत्व, इतनी घटना हो गई। इसके बीच में फिर एक के बाद एक क्वेश्चन आते हैं कि फिर ये भगवान बुद्ध क्यों आए। मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ये कि भगवान बुद्ध आए क्यों? जब उनको वेद रिजेक्ट ही करना था, तो पहले भगवान ने फिर वेद दिया क्यों? वेद, अभी मैंने स्टार्टिंग कहां से शुरू करी आज की क्लास? जो वेद को नहीं मानते, और वेद को नहीं मानने से क्या नुकसान है? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मैंने तो नहीं तोड़ा। सृष्टि किसने करी, ये प्रश्न की आधारशिला खत्म हो जाती है अगर आप वेद नहीं मानते। तो तार्किक लोग, भाई हमारा सारा सिद्धांत किस पे आधारित है? अब आप वेद काट दो, अब रेफरेंस पॉइंट खत्म कर दो,
क्या बचेगा? जब रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो डिस्कशन का आधार क्या है? 10 मूल तत्व की क्लास में हमने पहला तत्व पढ़ा था क्या? भैया वेद पे बात होगी, इधर उधर बात नहीं करेंगे भाई। कोई आधारशिला मेजरमेंट करना है तो कोई तो 0 पॉइंट देखना पड़ेगा ना। भारत का 0 पॉइंट कहां पे है? जहां से नपाई होती है 0 पॉइंट। भारत का 0 पॉइंट कहां है? 0 रुको 0 मील। अरे मील क्या होता है? 0 माइल इंडिया कहां पे है? समझे? 0 माइल है नागपुर में। क्यों जानते हैं? ये है 0 माइल, ये है रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि नागपुर भारत का सेंटर है। पता नहीं था? आप लोग के ज्ञान में आज वर्धन हुआ। इसको कहते हैं 0 माइल रेफरेंस पॉइंट। समझ रहे? 0 माइल इंडिया देख रहे हैं आप लोग, रेफरेंस पॉइंट। भाई ठीक है, मेरे को नपाई करने, तो कहां से शुरू करूंगा नपाई? नागपुर इज कंसिडर्ड टू बी द 0 माइल। ज्ञानावर्धन हुआ आज। तो 0 माइल वाला ये है रेफरेंस पॉइंट। मैं वेद ही नहीं मानूंगा तो फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है? और रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो क्या नुकसान है? जिसको जो मानना है वो मान सकता है भाई। जिसको जो मानना है वो माने, इसमें क्या समस्या है? जिसको जो मानना है वो माने, जिसको जो मानना है वो माने, वो फिर कोई कुछ मानेगा ही नहीं। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा है कि आज जो बात मैं बोल रहा हूं कल वो रिपीट करूंगी, गारंटी नहीं। कल मैं अलग बात भी बोल सकता हूं। मैं स्वच्छंद विहार करता हूं भाई। मैं आज जो बोलूंगा कल अपनी बात को काट सकता हूं। है? समझ रहे हैं आप? आप समझिए, मतलब आप थोड़ा सा ब्रो ये डीप जाना पड़ेगा। मतलब ये कोई कथा कहानी नहीं है कि वाह वाह मजा आने वाला है। ये कहते आत्मचिंतन, पॉन्डरिंग। भाई सोचो जरा कि कोई कुछ मानते ही नहीं है तो समाज कैसा होगा? या कोई मान लीजिए आपका बेस है, कोई नियम नहीं है, कुछ तो नियम होना चाहिए ना। बोले क्या जरूरत है नियम की? कुछ तो नियम होना चाहिए ना। देखिए कुछ तो नियम होना चाहिए। बोले नहीं, क्या जरूरत है कुछ नियम की? प्रभु बिना नियम के कुछ भी नहीं चल सकता। भाई जैसे मान लीजिए नियम, कुछ भी नियम नहीं है तो ये फिर तो कुछ भी नियम नहीं है। गाड़ी कोई राइट चले कोई लेफ्ट चले, कोई नियम नहीं। कोई 100 की स्पीड में चले कोई 800 की स्पीड में चले, कोई नियम नहीं है। कोई अगर नियम ही नहीं है तो कोई बाथरूम में खाना पकाए और किचन में बाथरूम करे? सोचो जरा, सोचो जरा, कोई नियम नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी थ्योरी, अपन एक ऐसी हाइपोथेटिकल थ्योरी पे चर्चा कर रहे हैं, कोई नियम नहीं है। अब अपन थोड़ा तार्किक बनते हैं कि एक ऐसी, जैसे अपन लोग कभी कभी ब्रह्म ज्योति को इमेजिन करते हैं ना, कुछ नहीं है केवल ज्योति है। सोचो जरा, कुछ नियम नहीं है, वो समाज कैसा होगा? जस्ट जस्ट इमेजिन द केओस। लोग सुनो, सुनिए, वर्कशॉप लोग लेते हैं जस्ट इमेजिन द पीस। अभी अपनी वर्कशॉप है, जस्ट इमेजिन द केओस। कुछ भी नहीं है। कोई अगर आपसे तर्क करे ना, ये सब वैज्ञानिक धरातल पे तर्क करते हैं कि कोई, हाँ, कोई ऑर्डर नहीं है, तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा, किसी में ऐसे ऐसे घूमेगा। सोचो जरा, कोई नियम नहीं है। कभी हवा ऐसे चलेगी, कभी हवा ऐसे चलेगी।
रेगिस्तान में बर्फ पड़ जाएगी, समुद्र में सूखा। हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। केओस, नाक यहां उग जाएगी, आंखें यहां आ जाएगी, ऐसा होता है क्या? जब सब चीज में ऑर्डर है तो फिर हम एक विदाउट एनी ऑर्डर सोसाइटी एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? यही इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं ना। आप इंड्यूस करके जानिए, आप अब अवरोहण करिए कि यार नियम तो है, इस प्रकृति में नियम तो है। तो अगर नियम है तो वेद भी है, और वेद है तो वेद आधारशिला है। और अगर आधार, कल उस दिन वो पर्पट पढ़ रहे थे ना, पर्पट मुझे समझ आया नहीं। समझ रहे हैं? ये समझने के लिए ये वर्कशॉप है। वो जो पर्पट आप पढ़ेंगे, अगर उसमें कि बुद्धों का उद्धार, प्रभुपाद जी का पर्पट बाउंसर गया हमारे, हम लोग पढ़े लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। ये अभी उल्टे तरीके से समझिए कि चलो आपकी बात हम मान लिए, कि हम ओशो की बात मान लें कि कोई सृष्टा नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर तुम स्वच्छंद हो, मैं कोई नियम नहीं मानता, तो फिर कोई नियम नहीं है। चलो लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट एनी नियम। कोडिंग नियम है, इमेजिन करो विदाउट नियम कोडिंग। सोचो जरा, सोचो जरा, कोई नियम नहीं है। किसी दिन कान देखने लगेंगे और आंखें सांस लेने लगेगी, नाक बोलने लगेगी और मुंह हगने लगेगा। क्या क्या ये थ्योरी कितनी हगाऊ थ्योरी है ना। तो सोचिए जरा, कितने सोचने की बात है ना, कि नियम ही नहीं। एक जस्ट कोई अगर कभी क्वेश्चन उठाए कि कोई नियंत्रण नहीं है, हम बोले हम मानते तुम्हारी बात, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, 1 घंटा बैठ करके हम ये इमेजिन करेंगे कि विदाउट एनी नियम, विदाउट एनी नियंता, एग्जिस्टेंस कैसा होता होगा। और एग्जिस्टेंस में क्यों होता होगा भाई? वो भी स्वच्छंद होना चाहिए। मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, हटा। यही तो बुद्धवाद लोग बोलते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो है ही नहीं। तुम नहीं हो और मैं भी नहीं हूं, और हम कोई भी नहीं है, और जो है वो केवल भ्रम है। सोचो जरा। तो क्यों फिर पढ़ना है, फिर क्यों लिखना है, फिर क्यों? सोचो जरा यार, सोच की घबराहट नहीं होती? इससे तर्क, इसी तर्क से सिद्ध होता है कि नियम भी है, नियंता भी है, ऑर्डर भी है, ऑर्डर मेकर भी है। और इसी से प्रूव होता है, निश्चित रूप से अगर ऑर्डर मेकर है तो अपने आप को जनाने के लिए उसने हमें कुछ फैसिलिटी दी है, जिस फैसिलिटी को वेद कहते हैं। क्या इसको चैतन्य चेतामृत में कहीं लिखा गया है? श्लोक है, बताओ कौन सा श्लोक है? क्यों कृष्ण ने वेद पुराण दिए? नहीं। माया मुग्ध जीवे नहीं, ये है आंसर। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। तो स्वतः तो कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है। अरे कृष्ण के विषय में छोड़िए, अपने अस्तित्व में ज्ञान नहीं है। उसको प्रकाशित करने के लिए जीव की कृपा करके भगवान ने वेद पुराण दिए हैं।
सोच रहे हैं? ये है रीजन। तो वेद की अथॉरिटी को मानना ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। आप समझ रहे हैं? अभी ये तर्क उठेगा जब आप जैनिज्म बुद्धिज्म चर्चा में लाएंगे, तो ये उठेगा तर्क, भाई वेद की कुछ तो अथॉरिटी माननी पड़ेगी ना, कोई तो अथॉरिटी होगी। तो उनने क्या किया है, वेद की अथॉरिटी ना मान करके फिर अपने शास्त्र निकाले, उसकी अथॉरिटी माननी पड़ेगी। अथॉरिटी तो माननी पड़ेगी, 0 माइल किसी को तो मानना पड़ेगा। अब वो नागपुर में मानो कि जबलपुर में मानो कि रायपुर में मानो, पर कहीं से तो आप रेफरेंस लोगे, बिना रेफरेंस पॉइंट के आप चल नहीं सकते, कोई नहीं चल सकता। इमेजिन करो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, इमेजिन भी नहीं कर सकते सर, इमेजिन से भी परे है ये चीज, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, हमारा मतलब वो इतना खतरनाक चीज है, केओटिक सिचुएशन को भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? मतलब तो वेद को आज हमने तार्किक रूप से स्टेब्लिश किया है। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? भैया आपने नहीं तोड़ा, हम मानते हैं, लेकिन किसी ने तो तोड़ा है। ठीक है, तो सोचिए जरा, मतलब तर्क को तर्क ही काट सकता है ना। तर्क वाला व्यक्ति तो शब्द प्रमाण को नहीं स्वीकार करेगा, वेद प्रमाण को स्वीकार नहीं करेगा। तो जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तुम सावधान रहना, तुम्हें कुत्ता काट सकता है। समझ रहे? तो तर्क तर्क को काटता है ना। तो आज हम तर्क से ही चर्चा किए हैं, हम तर्क से स्टैब्लिश कर रहे हैं कि वेद तो है, वेद तो है, वेद को माने बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं, जो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है इज अ सब्जेक्टिव टर्म। ईश्वर का अस्तित्व भी इस पर निर्भर करता है कि आप वेद मानते कि नहीं। आप जब वेद ही नहीं मानते तो मैं आपको ईश्वर का अस्तित्व से क्या बोध कराऊं? तो इसलिए पहले किसकी अथॉरिटी है? इसलिए 10 मूल तत्वों में पहले किसको बोला गया है? पहले भैया वेद होगा, उसके बाद अपन बात करेंगे। नहीं तो फिर बात का कोई आधार नहीं, किस आधार पे बात करें आपसे? पागल आदमी से बात करने से हो जाएगा। तो ये हमारी चर्चा, हम कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पे कैसे आए? हम तर्क से शुरू किए ना। हम बुद्धिस्ट लोगों, बुद्धिस्ट तर्क को हम लेकर के आए। हमने लास्ट टाइम क्या चर्चा किया था? तो प्रयोजन भी कहां से स्टैब्लिश होता है? ये भी श्लोक है, वेद कहे, वेद कहे संबंध अभिधेय, श्लोक है ये। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तेर साधना। तो भैया वेद शास्त्र बताते हैं कि भाई क्या संबंध और क्या अभिधेय और क्या प्रयोजन है। जब आप वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं तो फिर आपको गोल क्या है और मीन्स क्या है का क्वेश्चन कहां से उठेगा? कहीं से तो बात शुरू होगी ना, कहीं तो बात जाएगी ना। केवल बात इतनी रह जाएगी मुझे अच्छा लगता है, इससे ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हैं वेद की अथॉरिटी से होती हैं। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजना, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधना। तो पिछले श्लोक में क्या बताया कि संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, क्या है संबंध और क्या है अभिधेय और क्या है प्रयोजन। क्या है संबंध? ये। So the Vedic literature give information about living entities' eternal relationship with Krishna, which is called Sambandha. The living entity's understanding of this relationship and his acting accordingly is called Abhideya.
रिटर्निंग होम बैक टू गॉड, इट इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कॉल्ड प्रयोजना, समझे? एंड डिवोशन सर्विस द सेंस एक्टिविटी फॉर सेटिस्फैक्शन लॉर्ड इज कॉल्ड अभिदया because it can develop one's original love for Godhead. This is the goal of life. This goal of life, living entity's topmost interest and greatest wealth. Thus, one attains the platform of transcendental loving service unto the Lord. पहले तो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार किया जाएगा, फिर वेद ही हमको बताएंगे संबंध विधेय और प्रयोजन क्या है। तो अपने मन से हम प्रयोजन बना लेंगे क्या? मुझे अच्छा लगता है। और क्या चर्चा किया था पिछले सप्ताह हमने? हो गया वो तो। और पिछले सप्ताह बहुत कुछ चर्चा किया था भैया, रिवाइज कर लो नहीं तो ये भूल जाएंगे सारा। भैया आज कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? क्या सीखने को मिला आज? क्या सीखने को मिला? नियम है, वेद का अथॉरिटी क्या है, और तर्क, तो तर्क से हम कैसे काट सकते हैं। कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कोई जीरो मील चाहिए, जीरो माइल। क्या किया था पिछले सप्ताह और चर्चा में क्या लाए थे? हाँ वो तो हम इसमें आ गए थे, यस। और हैं टू साइन क्या क्या है? हाँ, और गला वस्त्र, बॉर्डर वाली और हाँ, आर्गुमेंट क्योंकि आधारशिला ही नहीं है, क्या ही आर्गुमेंट करेंगे, कोई आधारशिला ही नहीं रहेगा। और क्या अंतर है? ये स्टैब्लिश करना है, ये तो हमको समझना है। देखिए चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी को हमको पार्ट बाय पार्ट सब कुछ कवर किया महाप्रभु। एक्चुअली महाप्रभु ने, एक्चुअली मेरे को कभी कभी दया आती है, हमको एक्चुअली दूसरों से तर्क करने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं, क्योंकि तर्क से हम कुछ स्टैब्लिश कर नहीं पा रहे हैं। पॉइंट इज चैतन्य महाप्रभु इज गिवन एवरीथिंग। मैं कुछ दिन पढ़ रहा था कदम कानन महाराज लिखे बुक में, बोले कि बहुत हजारों सालों से द्वंद्व था द्वैत और अद्वैत का, महाप्रभु ने एक ही झटके में खत्म कर दिया, वे अचिंत भेदाभेद, काम खत्म। चैतन्य महाप्रभु's philosophy is perfect philosophy, is complete philosophy, is answering all your complete answer questions. All questions are answered completely. चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी कंप्लीट। चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी आने के बाद में अब इसको हमको अब इसकी जरूरत नहीं है कि हम इस फिलोसफी उस फिलोसफी में क्या झगड़ा करें। इट्स कंप्लीट फिलोसफी। भाई द्वैत और अद्वैत में प्रॉब्लम थी, खत्म कर। अब मैं उस दिन हमारा एक गिटारिस्ट बच्चा जो वृंदावन के महाराज जी के पास जाके प्रश्न पूछ रहा है कि मैं अद्वैत के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हूं, तो महाराज जी क्या आंसर दे रहे हैं कि भाई अल्टीमेट परफेक्शन तो अद्वैत ही है, द्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मान लिया, चलो आपकी बात को हमने एक मिनट के लिए मान भी लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप कौन है, आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है, ये संबंध ज्ञान क्लियर कर दीजिए, बाकी सब हम बाद में चर्चा करेंगे। कोई भी अद्वैतवादी आपके साथ संबंध की चर्चा नहीं करेगा। चलो इसमें 2 मिनट के लिए तर्क करेंगे। भाई आप कौन है? आप तो समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर समुद्र से एक भी है, समुद्र से अलग भी है। एक समय के लिए लहर है, जो समुद्र एक समय समुद्र ही है, वो लहर बनता है और बाद में फिर समुद्र में ही विलीन हो जाता है। उस तरीके से आपका अस्तित्व जो है वो पहले आप और ब्रह्म एक ही है, अब आपका इंडिविजुअल अस्तित्व है
और बाद में वो अस्तित्व एक ही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मायावाद थ्योरी। ठीक है, अभी मायावाद भाई ये है मायावाद, सर समझे? एक मटकी है, उसके अंदर हवा है, मटकी के अंदर की हवा और बाहर की हवा अलग कैसे हुई? मटकी के अंदर का आकाश, आकाश मतलब स्पेस, और बाहर के आकाश से अलग कैसे हुआ? अलग कैसे हुआ? नहीं, उस मटकी के कारण अलग हुआ। अब मटकी फोड़ दीजिए तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक है। तो जब तक ये जो आपका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है आपके फॉल्स ईगो के कारण है, मैं हूं ये जब तक आपकी मान्यता है तब तक आप हैं। जब ये मैं डिसॉल्व हो जाएगा, किसी ने बुद्ध से पूछा दैट आई वांट हैप्पीनेस, तो बुद्ध ने कहा सबसे पहले आई हटा दो, फिर कहा वांट हटा दो, जो बचेगा वही हैप्पीनेस है। सुना नहीं आपने? अरे ये तो बहुत फेमस है इंटरनेट पे। बुद्धा सेड आई वांट हैप्पीनेस, रिमूव आई एंड वांट, अभी आ जाएगा। ये बड़ा भैया, ये तो बहुत चलता है। A man asked Lord Buddha, I want happiness. Buddha says, first remove I, that's ego. Then remove want, that's desire. See now, you're left only with Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. देखो कितना सुन के अच्छा लगा, कितना बढ़िया कोट। अब ये सुबह सुबह व्हाट्सएप पे शेयर होगा और जिसको मिलेगा वो उसको दूसरे को शेयर कर देगा। केवल शेयरिंग डिपार्टमेंट चलता है भाई। हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? क्वेश्चन कौन कर रहा है? जब आई ही नहीं है, जब मेरा अस्तित्व ही नहीं है, तो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? कितना मतलब सोचिए जरा, मायावाद फिलॉसफी कितनी मतलब बोगू फिलॉसफी हो सकती है और उसको मानने वाले कितने कंफ्यूज लोग हो सकते हैं। ट्रम्प का कंफ्यूजन वाला मीम देखा ना आप लोगों ने? मैंने उसे बताया था ना, बेस्ट वे टू कंफ्यूज योर एनिमी इज टू रिमेन कंफ्यूज। ट्रम्प, ये भी हो सकता, मीम देखना चाहिए आप लोगों को ये। ठीक है, देखा देखा आप लोगों ने? इन ऑर्डर टू कंफ्यूज योर एनिमी यू मस्ट फर्स्ट कंफ्यूज योर सेल्फ। डोनाल्ड ट्रम्प को देखा आप लोगों ने? हाँ, अब पूरा है, टू कंफ्यूज द एनिमी फर्स्ट कंफ्यूज योर सेल्फ। इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, योर एनिमीज डोंट ईदर। समझ रहे? पॉइंट समझ रहे? क्या समझ रहे? जब कौन हैप्पी भाई माया, मेरे को अद्वैत में रुचि, चलो ठीक है भाई, तेरे को रुचि है, तेरे को हमसे नहीं पड़ती, तेरे समझ आता है। अद्वैत में तेरे को क्या रुचि है भाई? मैं हूं ही नहीं, जो मैं हूं ये माया है, तो क्या है फिर? नहीं, आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे एक्चुअली। जब आप उस स्तर को पहुंच जाओगे तो आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा? कि मैं नहीं हूं। मेरे पास एक वीडियो आप लोग को दिखानी चाहिए, ठीक है? अब और इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए ध्यान से। ये जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, लेकिन आप लोग भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, और मैंने सब वीडियो डिलीट कर दी। इसको डिलीट नहीं करेंगे, ये बहुत काम की वीडियो है। ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो मैं अब दिखाने वाला हूं,
ये एक्चुअली वीडियो पता है किसने बनाई, मैं अब इसको मैं थोड़ा और समय से क्लियरली समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो वीडियो है ये एक इस्लामिक चैनल पे आई, ठीक है, ये एक इस्लामिक चैनल की वीडियो है, इसलिए आप पठान देख रहे हो, तो वहां लिखा था ये मुस्लिम और ये हिंदू है। ये इस्कॉन वालों ने इस वीडियो को निकाला और पठान की जगह को वैष्णव लिख दिया, और इस बंदे की हिंदू की जगह को मायावादी लिख दिया। क्यों लिखा जानते हैं? क्योंकि इस्लामिक लोग जो हिंदू लोगों से तर्क करने आते हैं वो 99.99% किसको कन्फ्रंट करते हैं? मायावादी को। तो मायावादी जो बात बोलते हैं वो तो मायावादी को खुद समझ नहीं आती, तो मुसलमानों को कैसे समझ आएगी? तो मुसलमान लोग हंसते हैं कि तुम्हारी फिलॉसफी इतनी नॉनसेंस है, समझ रहे हैं? अच्छा, हिंदू लोग और अगर वैष्णव लोग बोले कि तुम्हारी फिलॉसफी, इस्कॉन वाले बोले तो बोले तुम यू आर प्रो मुस्लिम, हमको ऐसा बोलेंगे प्रो क्रिश्चियन। आप समझ रहे हैं? आपको एक एक इस्लामिस्ट व्यक्ति आया, भैया ये तो एक करके पता चलता है, एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना पड़े, मैंने किया हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कोई एक इस्लामिक व्यक्ति आता है, वो आप एक जनरल हिंदू से बात करेगा, एक जनरल हिंदू एक ही फिलॉसफी बोलता है, इसको मायावाद कहते हैं, अद्वैतवाद, मायावाद। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, सुनिए ध्यान से, इसको सुनना चाहिए, सुना आप लोगों ने? देखा ना इसको? नहीं देखा? नहीं देखा? तुम लोग देखते नहीं हो। मोक्ष में आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, राइट? अब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर सवाल ये है, आप कुछ नहीं होगा इस दुनिया में जब अंत में आप खुद रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य है संसार से मुक्त होकर उस परम सत्ता में लीन होना, यही शाश्वत शांति है। अगर लीन होने से अगर अस्तित्व ही ना रहे, तो फिर आपको उस शांति का एहसास कैसे होगा? क्योंकि एहसास तो तभी होता है जब मैं बचा हूं, अहंकार मिट जाता है, मैं का भाव खत्म हो जाता है, और वही मोक्ष है। तो क्या आप मानते हैं कि अंत में आप किसी चीज को जानने, महसूस करने, समझने की शक्ति भी नहीं रखेंगे? वो सब द्वैत में होता है, मोक्ष में सब एक हो जाता है। अगर सब एक हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अब मुक्त हो गए? कोई अनुभव बचा ही नहीं तो मोक्ष की अनुभूति भी कैसे? वो अनुभूति सांसारिक नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान भी तो जानने वाला चाहता है ना। जब जानने वाला ही विलीन हो गया तो ज्ञान किसको मिलेगा? शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ये अनुभूति है। अगर शब्दों में नहीं बताया जा सकता तो क्या आपने खुद महसूस किया है? नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। अगर खुद अनुभव नहीं किया और केवल ग्रंथों पर भरोसा है, तो क्या आप खुद को मिटा देने वाले एक विचार पर पूरा जीवन दांव पर लगा सकते हैं? लेकिन यही तो शाश्वत सत्य है, आत्मा अनादि है और ब्रह्म में मिलना उसका लक्ष्य। अनादि का मतलब है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो अगर आत्मा ब्रह्म में जाकर खत्म हो गई तो वो अनादि कैसे रही? वो खत्म नहीं होती, बस उसका अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर ब्रह्म में आत्मा और ब्रह्म अलग होने पहले, जब मिल गए तो फिर अलग क्यों हुए? माया पिता है, माया ने आत्मा को भटकाया। तो क्या माया ब्रह्म से बड़ी है क्योंकि वही ब्रह्म की आत्मा को भ्रम में डाल रही है? नहीं, माया ब्रह्म का ही हिस्सा है। तो फिर ब्रह्म ने खुद की आत्मा को भ्रमित किया, फिर वो परम ज्ञान कैसे होगा जो खुद को ही धोखा दे रहा है? ये सब बहुत मूल बात है, समझने के लिए अभ्यास और ध्यान चाहिए। ध्यान भी तब होगा जब मैं हूं, लेकिन जब अंत में वो मैं ही नहीं रहेगा तो क्या वो सब अभ्यास बेकार नहीं होगा? और क्या आप ये मानते हैं कि जन्म मरण का चक्र दुख है, इसलिए मोक्ष जरूरी है? तो क्या बच्चा पैदा होना दुख है? हाँ, क्योंकि जन्म से ही बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जन्म लेकर माता पिता की सेवा करता है, समाज में भलाई करता है, तो वो बंधन नहीं, सेवा नहीं हुआ? ये सब कर्म बंधन है, अच्छे कर्म भी बंधन होते हैं, मतलब अच्छाई भी दुखदाई है। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई कुछ अच्छा भी न करे क्योंकि सब बंधन है? नहीं, अच्छे कर्म मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि अच्छे बुरे सब कर्म बंधन है, तो मोक्ष एक ऐसे सिस्टम में क्यों है जहाँ अच्छाई भी बंधन बन जाती है? क्योंकि अंतिम लक्ष्य बंधन होती है। तो क्या रिश्ते, प्रेम, सेवा सब मोह माया है? हाँ, सब मोह माया है। फिर क्या आप ये मानते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वो भी बंधन है? तो फिर ममता, करुणा ये सब त्याग है? आध्यात्मिक स्तर पर हाँ। फिर तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ त्यागने का मतलब है कि आप किसी के लिए नहीं जीते। और एक बात, मान लीजिए किसी को मोक्ष मिल गया, अब वो आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई, क्या वो फिर कभी कोई बात जान पाएगा? नहीं, तो उसने जीवन भर जिस मोक्ष के लिए मेहनत की, उसे जानने, महसूस करने और आनंद लेने का कोई तरीका नहीं बचा। वो ब्रह्मानंद होता है, लेकिन आनंद भी तब होता है जब कोई आनंद लेने वाला हो। जब वो भी नहीं बचा तो आनंद किसे? तो क्या ये संभव है कि मोक्ष का जो कंसेप्ट है वो इंसानी सोच से पैदा हुआ भ्रम हो सकता है जो आत्मा की स्वतंत्रता को मिटा देता है? हो सकता है। ये है मायावाद फिलोसफी, समझ गए ना मायावाद किसको कहते हैं? इसके लिए और कोई बहुत विशेष एक्सप्लेनेशन? ये है मायावाद। तो क्या समझा मायावाद से? मैं उस हेमंत को भेजता हूँ, बच्चे को भेजता हूँ। वृंदावन चले गए तो
हाँ, तो अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बताने वाले को भी समझ नहीं आ रहा है, तो समझने वाले को खाक समझ आएगा? समझे वो कितना कंफ्यूज है? समझ पा रहे हैं? ये है कॉन्सेप्ट। तो अद्वैत की फिलॉसफी कितनी भोगू फिलॉसफी हो सकती है कि समझने वाले को भी समझ नहीं आ रही, समझाने वाले को भी समझ नहीं आ रही, और जब समझ नहीं आए तो क्या बोल दो, भाई ले वतेंद्री, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो आनंद है। तो आनंद ले कौन रहा भाई? समझ गए? समझ गए आप लोग? हाई लेवल हो गया है? चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी हाईएस्ट है। ये हम झंडा गाड़ बातें नहीं बोल रहे हैं भाई ये ऐसा है, आओ आमना सामना हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कदम खान महाराज लिखे कि जो बरसों से चला हुआ युद्ध है द्वैत अद्वैत का, उसको महाप्रभु ने एक ही क्षण में खत्म कर दिया। ये एग्जांपल है ना, घटाका पकाड़ पटाखा, आप लोग नहीं पढ़ते क्या, बुक्स नहीं पढ़ते हैं? घटाका पटाकाश फिलोसॉफी इसको कहते हैं। हाँ, ये है घटाकाश। इमेजिन अ पॉट प्लेस्ड इन ओपन स्काई, द स्पेस इनसाइड पॉट इज कॉल्ड घटाकाश एंड बाहर को महाकाश। इल्यूजन ऑफ सेपरेशन है, लेकिन वास्तव में एक है। प्रभुपाद जी ने इसको भयंकर समझाया है। अगर आप डिटेल में पढ़िए पर्पस को, तो कहां पे कौन से सेक्शन में समझाया है? सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार वाले चैप्टर पे ये सब चीजें चर्चा हुई है। बहुत कभी कभी समझ ही नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। वो मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी बोल रहे हैं, आज मैं सुन रहा था सौरभ दामोदर को, बहुत अच्छा पॉइंट बताया पॉडकास्ट में, सृष्टि बिल्कुल संक्षिप्त समझा दी उन्होंने। प्रधान मतलब मैटर जो कि अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ करने योग्य नहीं, उसके ऊपर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, फिर वो महत्तत्व बनता है। महत्तत्व मतलब वो ऑर्गेनाइज होता है। महत्तत्व से सृष्टि होती है अहंकार की। अहंकार जो जीव को बांधता है। अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार होता है। तामसिक अहंकार से शरीर उत्पन्न होता है, सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और राजसिक से हाँ इंटेलिजेंस होती है या इंद्रिय विषय होते हैं। तामसिक से होते हैं। इस प्रकार सृष्टि होती है। तो भागवतम के इनिशियल कैंटोज में सृष्टि कैसे हुई है, यानी जीव बंधन में कैसे आया? जीव बंधन में कैसे आया? अहंकार से आया, ईगो से। कौन से ईगो से भाई? अहंकार से, मतलब फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं। फॉल्स ईगो मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, ये भूल करके अगर व्यक्ति के अंदर भावना है कि मैं स्वामी हूं, यहां से उसके बंधन की शुरुआत होती है। फिर बंधन के अलग अलग फीचर्स है। बंधन बांधने के लिए उसको मन मिलता है, बांधने के लिए उसको इंद्रियां मिलती है, बांधने के लिए उसको बुद्धि मिलती है, सब बांधने के लिए, बांधने की प्रक्रिया है। तो इनिशियल कैंटोज में, विशेष सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में, फोर्थ कैंटो में आपको सृष्टि दिखेगी कैसे हो रही है, कि भाई जीव कैसे बंधन में आ रहा है। 11th कैंटो में वो क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। अब एक एक सूत्र हटता है, और लास्ट सबसे मोटी परत किस चीज की होती है? फॉल्स ईगो की, वो हटती है। तो जीव फिर जब ट्रू ईगो में एस्टेब्लिश होता है। ट्रू ईगो क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो जीव कैसे जीव का अस्तित्व क्या है? बंधन में कैसे आया? बंधन कहां से शुरू हुआ? फिर अगर बंधन के डायनामिक्स आप समझेंगे तब तो जाके मुक्ति के डायनामिक्स समझेंगे। तो मायावाद फिलॉसफी तो कह रही कि माया के कारण जीव बंध गया। जीव क्या है? ब्रह्म का ही कोई हिस्सा जो माया के प्रभाव में आकर के वो जीव हो गया। जीव अलग से नहीं है, ब्रह्म ही
माया के बस में जीव हो गई। जब जीव के ऊपर माया का पर्दा हट जाता है तो वो ब्रह्म है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये भी यहाँ पे भी इनने महाशय ने भी तर्क क्या दिया कि अगर ब्रह्म माया के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो शक्तिशाली कौन? माया। इसलिए उस फिलोसफी को क्या बोलते हैं? मायावाद, जो माया के झंडे गाड़ने की फिलोसफी है। कि जब आप बोल रहे हो कि ब्रह्म माया के इन्फ्लुएंस में आ गया तो शक्तिशाली कौन? लेकिन हमारी फिलोसफी क्या कहती है कि माया की उत्पत्ति कहां से हुई है? उदाहरण, बादल की उत्पत्ति कौन करता है? सूर्य। और वो बादल क्या करती है? सूर्य को नहीं ढकती है, हमारे आंखों को ढक लेती है कि हम सूर्य को नहीं देख पाते। दैट्स इट। देखिए, अद्वैत और द्वैत में भी बहुत बारीक लाइन है, और ये बारीक लाइन भी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। भाई देखने में जो द्वैत के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अद्वैत के, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बारीक है, लेकिन वो बारीकी को, वो एनालॉजी एक दोनों में सेम मिलेगी कई बार तो आपको, पर दोनों को देखने का दृष्टि अलग अलग है। कि ब्रह्म से ही माया की सृष्टि हुई है, ब्रह्म से ही, और वो माया क्या करती है? जीव का विजन ब्रह्म के प्रति रोक देती है, काट देती है। तो प्रश्न है कि ब्रह्म से किस सृष्टि हुई माया की? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि भगवान से माया, भगवान की ही माया है, भगवान की ही माया है? कौन सा श्लोक है? मम माया दुरत, मेरी ही है। तो गीता को समझने के लिए कितना, थोड़ा बुद्धि थोड़ा सा तीक्ष्ण, मतलब ये ओपन दिमाग वाले लोगों के लिए है, ये वैष्णव फिलोसफी पागल लोगों के लिए नहीं है, ये बुद्धू लोगों के लिए नहीं है, नहीं समझ पाएंगे तो उनको आप नहीं समझा सकते। उनको द्वैत, हम, मुझे अद्वैत पसंद है, मुझे अद्वैत में रुचि, महाराज महाराज मुझे अद्वैत में रुचि है। बालक, अद्वैत और द्वैत में कोई अंतर नहीं है, वास्तविक सब कुछ अद्वैत ही है। ये है प्रॉब्लम। और दिखने में लगे कि सब कुछ वैष्णवता है, मूल जड़ों में समस्या है। इसलिए कभी डिबेट कर, डिस्कशन करें, बैठा लीजिए, कोई साधु मिलता है, बोलो बैठो भैया, बताओ तुम्हारा फिलोसफी क्या, भैया आपका फिलोसफी क्या है, ऐसे शुरू करिए, बताइए संबंध ज्ञान क्या है, बताइए प्रयोजन क्या है, बताइए उस प्रयोजन को प्राप्त करने का विधि क्या है, बताइए। जब ठीक ठीक बताएंगे तो बात करेंगे, नहीं तो हरे कृष्णा। ये बिल्कुल टेस्ट है। और मेरा कहना है कि छुट्टियों में थोड़ा जाइए बाहर निकल के, तो जब साधुओं को पकड़िए, बताइए, हैं? हाँ, जाना चाहिए। अरे आप समझ रहे, मैं क्या, मजा लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, उधर इंटर्न जाके देखना चाहिए भाई हमारे तो देखो, एक्सप्लोर करो। हम करते नहीं ये सब प्रोजेक्ट। स्कूलों में पहले ऐसा होता ना कि बच्चे पढ़ते थे, फिर बाहर निकल प्रोजेक्ट करते थे। IIM वगैरह में ऐसा ही होता है ना, कि कुछ केवल थ्योरी से नहीं सीखेंगे, दे विल बिल्ड देयर ओन बिजनेसेस टू लर्न बिजनेस। तो सिमिलरली टू लर्न फिलोसफी वी मस्ट एक्सप्लोर। आओ भाई बैठो, बात करते हैं। हाँ बाबा जी, आप ही क्या फिलोसफी है? ये छोटी मोटी अच्छी बुरी बातें मत बताइए, अच्छा बुरा सिद्धांत बताइए, सिद्धांत बताइए आपका, संबंध ज्ञान बताइए। मैं कौन हूं, आप कौन है, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आमी, क्या मैं जा रहे तापत्र है, क्यों हम ये त्रिताप में फंसे हैं? ये होता है क्वेश्चन। के आमी, यहां से डिस्कशन, किसी साधु के सामने जाएं तो बाबा जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये बीमारी लेके ना जाए। रूपा जी क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो लोग साधु के पास जाए, विभूति खाएंगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। ये पर्पस नहीं है साधु के पास जाने का। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की